بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں پوری دنیا کا میڈیا اور سوشل میڈیا صرف ایک ہی موضوع پر بات کر رہا ہے اور وہ ہے جیفری ایپسٹین اور اس کی خفیہ لسٹ۔ بلکہ ہمیں ان فائلز میں ایک ایسی تفصیل ملی ہے جس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کے مرکز یعنی خانہ کعبہ سے ہے۔ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ ان ناپاک لوگوں کے پاس خانہ کعبہ کے غلاف کا تذکرہ کیسے آیا اور انہوں نے اس پاک چیز کو کیسے استعمال کیا۔ یہ وہ سوال ہے جس نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آخر ایپسٹین فائلز نامی طوفان کی حقیقت کیا ہے اور یہ شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو ناظرین، جیفری ایپسٹین امریکہ کا ایک انتہائی امیر فنانسر تھا جس کے تعلقات دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ تھے۔ اس کے دوستوں کی فہرست میں سابق امریکی صدور، برطانوی شاہی خاندان کے شہزادے، ہالی ووڈ کے بڑے سٹار اور دنیا کے معروف سائنسدان شامل تھے۔ بظاہر وہ ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، لیکن پردے کے پیچھے وہ ایک گھنونے نیٹ ورک کا سرگنا تھا جو کم عمر لڑکیوں کی سمگلنگ اور جنسی استحصال میں ملوث تھا۔ یہ معاملہ سب سے پہلے 2005 میں فلوریڈا میں سامنے آیا جب پولیس کو شکایت ملی کہ ایپسٹین کے گھر میں کم عمر لڑکیوں کو لایا جاتا ہے۔ 2008 میں اس پر مقدمہ چلا، لیکن چونکہ اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے اس لیے اس نے ایک متنازع ڈیل کے تحت انتہائی کم سزا پائی اور معاملہ دبا دیا گیا۔ اس وقت اسے صرف 13 ماہ کی قید ہوئی اور وہ بھی ایسی کہ وہ دن میں کام کے لیے باہر جا سکتا تھا۔ لیکن سال 2019 میں حالات بدل گئے جب می ٹو تحریک کے زور پکڑنے کے بعد ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اس پر نیو یارک میں جنسی سمگلنگ کے سنگین الزامات لگائے گئے۔ اس بار معاملہ سنگین تھا اور اسے ضمانت نہیں ملی، لیکن مقدمہ چلنے سے پہلے ہی اگست 2019 میں وہ اپنی جیل کی کوٹڑی میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا، حالانکہ اس کی موت پر آج بھی دنیا بھر میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ شاید اسے خاموش کرایا گیا تھا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایپسٹین 2019 میں مر چکا ہے تو اب یہ فائلز 2024 یا 25 میں سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا جواب ایک خاتون کے پاس ہے جس کا نام ہے ورجینیا جوفرے۔ ورجینیا وہ خاتون ہے جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ ایپسٹین کے جال کا شکار ہوئی تھی۔ انہوں نے ایپسٹین کی قریبی ساتھی اور گرل فرینڈ گلین میکسویل کے خلاف حتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ یہ ایک سول مقدمہ تھا جو 2015 میں شروع ہوا۔ اس مقدمے کے دوران عدالت میں ہزاروں صفحات پر مبنی دستاویزات، گواہوں کے بیانات، ای میلز اور فلائٹ لاگز جمع کرائے گئے تھے۔ جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو عدالت نے ان کاغذات کو سیل یعنی خفیہ رکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ گواہوں اور متاثرین کی شناخت چھپائی جا سکے۔ اب سالوں بعد ایک امریکی جج نے حکم دیا کہ ان دستاویزات کو عوام کے لیے کھول دیا جائے یعنی ان سیل کر دیا جائے، کیونکہ اب ان کو چھپانے کا کوئی قانونی جواز باقی نہیں رہا۔ تو یہ جو فائلز اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اسی پرانے مقدمے کی قانونی کاغذات ہیں۔ ان میں وہ تمام ای میلز اور بیانات شامل ہیں جو تفتیش کے دوران اکٹھے کیے گئے تھے۔ ان فائلز میں ان تمام لوگوں کے نام ہیں جو ایپسٹین کے طیاروں میں سفر کرتے رہے، اس کے جزیرے پر جاتے رہے یا اس کے ساتھ ای میلز پر رابطے میں رہے۔ یہاں پر یہ واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ لسٹ میں نام ہونے کا مطلب خودکار طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ شخص مجرم بھی ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کا ایپسٹین کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا تعلق یا رابطہ ضرور تھا۔ انہی ہزاروں صفحات کو جب دنیا بھر کے صحافیوں اور محققین نے کنگالنا شروع کیا تو جہاں بڑے بڑے سیاستدانوں کے راز کھلے، وہیں ایک ایسی تفصیل بھی سامنے آئی جس کی توقع کسی کو نہیں تھی اور جس کا تعلق مشرق وسطیٰ اور مسلمانوں کے مقدس ترین مقام سے تھا۔ ان دستاویزات کے ڈھیر میں 2017 کی ای میلز کا ایک ایسا تبادلہ ملا جو اب پوری مسلم دنیا میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ ای میلز اس بات کا دستاویزی ثبوت ہیں کہ 2017 میں سعودی عرب سے جیفری ایپسٹین کو غلاف کعبہ یعنی کسوہ کے 3 حصے بھیجے گئے تھے۔ یہ بات محض افواہ نہیں ہے، بلکہ امریکی محکمہ انصاف کی جاری کردہ فائلز میں تحریری طور پر موجود ہے۔ ای میلز کی تاریخ مئی 2017 کے آس پاس ہے جب ایپسٹین اپنی موت سے 2 سال پہلے آزاد گھوم رہا تھا۔ ان ای میلز میں تفصیل سے بتایا گیا کہ کسوہ کے 3 الگ الگ ٹکڑے سعودی عرب اور امریکہ سے روانہ کیے گئے۔ رپورٹس اور ای میلز کے متن کے مطابق ان 3 ٹکڑوں کی نوعیت الگ الگ تھی۔ پہلا ٹکڑا وہ تھا جو خانہ کعبہ کے اندرونی حصے سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کا اندرونی حصہ عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور وہاں تک رسائی صرف انتہائی خاص لوگوں کو ہی ملتی ہے، لہٰذا اس کے غلاف کا ٹکڑا ملنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا وہ تھا جو کعبہ کے بیرونی حصے پر استعمال ہو چکا تھا، یعنی وہ مقدس سیاہ غلاف جس پر سونے کی تاروں سے آیات لکھی ہوتی ہیں اور جسے کروڑوں مسلمان عقیدت سے چومتے ہیں۔ تیسرا ٹکڑا ایک ایسا غیر استعمال شدہ کپڑا تھا جو اسی مٹیریل سے بنا تھا جس سے اصل غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے پاس جانا، اور وہ بھی ایسا شخص جو اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا، ایک انتہائی حیران کن بات ہے۔ ناظرین، ای میلز میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ مقدس سامان ایپسٹین تک کیسے پہنچایا گیا۔ یہ ترسیل سعودی عرب سے امریکہ تک ہوائی راستے کے ذریعے کی گئی اور رپورٹس کے مطابق اس کے لیے برٹش ایئر ویز کی کارگو سروس استعمال ہوئی۔ لیکن دوستو، سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ کسٹمز اور ایئرپورٹ کے حکام کی نظروں سے بچنے کے لیے یا ٹیکس کے معاملات کو آسان بنانے کے لیے ان مقدس تبرکات کو آرٹ ورک یعنی فن پارے کی کیٹیگری میں ظاہر کیا گیا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ بھیجنے والے نے آرٹ ورک لکھ کر بھیجا تاکہ اس پر زیادہ سوالات نہ اٹھیں اور یہ آسانی سے کلیئر ہو جائے۔ اس پارسل کی آخری منزل فلوریڈا میں ایپسٹین کا گھر یا پھر یو ایس ورجن آئی لینڈز میں اس کا وہ بدنام زمانہ جزیرہ تھا جہاں وہ اپنی سیاہ کاروائیاں کرتا تھا۔
اب यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि यह काम किसने किया। क्या यह कोई सरकारी सतह का तोहफा था या किसी फर्द का जाती अमल? दस्तावेजात में दो नाम वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। एक नाम अजीजा अल अहमदी का है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में मुकीम एक कारोबारी खातून बताई जाती है। दूसरा नाम अब्दुल्ला अल मुआरी का है, जो एक सऊदी राब्ताकार है। ईमेल्स के लहजे से पता चलता है कि ये लोग एप्स्टीन के लिए काम कर रहे थे या उसके साथ करीबी राब्ते में थे। इन्होंने एप्स्टीन को मुतला किया कि सामान रवाना कर दिया गया है और इस बात की यकीन दहानी कराई कि बाहिफाजत ये सामान इस तक पहुंच जाएगा। अब ये दोनों अफराद कौन है और इनकी रसाई इतनी मुकद्दस चीजों तक कैसे हुई, ये वो गुत्थी है जो अभी तक सुलझ नहीं सकी। लेकिन इनका नाम उन अमरीकी कानूनी दस्तावेजात में आना इस बात का सबूत है कि गिलाफे काबा की स्मगलिंग या मुंतकिली में बाकायदा मंसूबाबंदी की गई थी। बहरहाल इस इंकिशाफ ने मुसलमानों के जज्बात को शदीद मजरूह किया है। नाज़रीन, किस्वा या गिलाफे काबा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि ये इस्लामी विरसे और अकीदत का मरकज है। आमतौर पर सऊदी हुकूमत गिलाफे काबा के पुराने टुकड़े गैर मुल्की सरबराहान, रियासती मेहमानों या दुनिया के बड़े अजायब घरों को तोहफे में देती है। ये एक सिफारती रिवायत है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ना तो कोई सदर था, न बादशाह और ना ही कोई नेक नाम शख्सियत। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था और इसका किरदार पूरी दुनिया में मशकूक था। ऐसे शख्स को इतना नायाब और मुकद्दस तोहफा देने की कोई मंतक समझ में नहीं आती। क्या एप्स्टीन ने इसे अपने घर की सजावट के लिए मंगवाया था? क्या वो इसे आगे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था, या ये महज इसकी अजीबोगरीब कलेक्शन का हिस्सा था? इन सवालों का जवाब उन ईमेल्स में नहीं है, लेकिन ये वाकया ये जरूर साबित करता है कि पैसे और असर रसूख की वजह से एप्स्टीन की पहुंच उन जगहों तक भी थी जहां आम मुसलमान सिर्फ जाने का ख्वाब देख सकता है। अवाम और खास तौर पर सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वाकये की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। क्या मुकद्दस मकामात के निगरान इस बात से बेखबर थे कि किस्वा के टुकड़े कहां जा रहे हैं? अभी तक सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता सरकारी रद्द अमल या तरदीद सामने नहीं आई। ये खामोशी शकूक व शुबहात को मजीद हवा दे रही है। अगर ये दस्तावेजात झूठी होती तो अब तक सख्त रद्द अमल आ चुका होता, लेकिन चूंकि ये अमरीकी अदालत और FBI की तहवील से निकली हैं, इसलिए इन्हें झुटलाना आसान नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि वो 3 टुकड़े अब कहां हैं। क्या वो अब भी एप्स्टीन की जब्तशुदा जायदाद में पड़े हैं? क्या अमरीकी हुकूमत ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है या वो कहीं गायब हो चुके हैं? ये पूरा मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया का निजाम किस तरह काम करता है। अब देखना यह है कि क्या इस इंकिशाफ के बाद कोई जिम्मेदार इदारा हरकत में आता है और इन मुकद्दस तबरकात को वापस अपनी असल जगह या किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाता है, या फिर ये मामला भी वक्त की धूल में दब जाएगा। फिलहाल हकीकत यही है कि एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को एक ऐसा सच दिखाया है जो इंतहाई तल्ख और तकलीफ दे है। और इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर मौजूद है वो लिटिल सेंट जेम्स नाम का बदनाम टापू कि जिसने पिछले कुछ महीनों से पूरी की पूरी दुनिया में एक हंगामा मचा रखा है, क्योंकि यही वो खास टापू है कि जिसको आम लोगों की तरफ से एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। और इसी आइलैंड, इसी टापू के ऊपर ही दुनिया के वो हद से ज्यादा घिनौने, गंदे और खतरनाक काम हुए हैं कि जिनको शर्म की वजह से ना तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है और ना ही आप लोग उसको सुनने की हिम्मत रखते हैं। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि समुद्र के बीच में मौजूद इस सुनसान टापू के ऊपर कई सालों तक जो कुछ भी होता रहा था उसको अंजाम देने वाले दुनिया के कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये तो दुनिया के अमीर से अमीर और मशहूर से मशहूर लोग थे। कोई नेता था तो कोई रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ बंदा था, कोई बिजनेसमैन था तो कोई किसी दूसरे फील्ड का मशहूर इंसान था। अब अगर आप लोगों को इस आइलैंड और इसका जो मालिक हुआ करता था, मतलब के जेफरी एप्स्टीन, उसकी हकीकत को जानना है 1953 की, कि जब अमेरिका के अंदर जेफरी एप्स्टीन नाम के इस इंसान का जन्म हुआ था। इस बंदे ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली स्कूल टीचर के तौर पर की थी। उसके बाद ये वॉल स्ट्रीट पहुंचा, जहां पर इसने अमीर लोगों के पैसों को मैनेज करना शुरू किया। यही इसकी काबिलियत थी। और फिर इसने अपनी खुद की कंपनी खोली और उसके बाद अमीर से अमीर लोगों से रिश्ते बनाने शुरू किए और उनके करीब आता चला गया। बड़े और असरदार लोगों से कनेक्शन बनाने में ये इंसान कितना ज्यादा माहिर था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने जिन लोगों से कनेक्शन बनाए उनमें दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट और इसके अलावा देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शामिल थे। जी हाँ, जो जेफरी एप्स्टीन का अपना प्राइवेट आइलैंड था। जेफरी एप्स्टीन का ये आइलैंड मानव तस्करी, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण और यौन अपराधों का एक अड्डा हुआ करता था। दुनिया के बाकी इलाकों से छोटी और बहुत कम उम्र बच्चियों को बहला फुसलाकर या बाकी तरीकों का इस्तेमाल करके इस आइलैंड पर लाया जाता था और फिर यहाँ पर लाकर जबरदस्ती या फिर दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके उनके साथ वो सब कुछ किया जाता था कि जो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। दुनिया के जितने भी अमीर, असरदार और ताकतवर लोग थे कि जो जेफरी एप्स्टीन के कनेक्शन में थे या उसके दोस्त हुआ करते थे या उससे क्लोज हुआ करते थे, वो वक्त वक्त पर जेफरी एप्स्टीन के इस आइलैंड पर जाया करते थे। कभी तो एप्स्टीन की तरफ से इन लोगों को पार्टीज में इन्वाइट किया जाता था, तो कभी ये इंडिविजुअली अलग अलग अपने पर्सनल ट्रिप पर भी जाया करते थे। एक थ्योरी ये भी है कि जब भी दुनिया के ये असरदार लोग इस आइलैंड पर जाया करते थे तो जेफरी एप्स्टीन खुफिया
खुफिया तौर पर इन लोगों के फोटोज या फिर वीडियोस ले लिया करता था। बाद में इन्हीं फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। और उस दौर में लिए गए वो फोटोज और वीडियोज ही हैं कि जो कई सालों के बाद मतलब 2025 और 26 में एक एक करके रिलीज होकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहे हैं। अब जितनी भी कम उम्र लड़कियां थीं कि जो इन तमाम चीजों का लगातार शिकार बनी थीं या उनके पेरेंट्स थे वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जेफरी एप्स्टीन के ऊपर दुनिया के सबसे ताकतवर और असरदार लोगों का हाथ है। इसीलिए इस इंसान के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर बल्कि अगर मुंह भी खोला गया तो शायद हमारा ही अंजाम खतरनाक हो सकता है। लेकिन 2005 में उस वक्त बड़ा मोड़ आया कि जब इन्हीं चीजों से गुजरने वाली एक लड़की ने हिम्मत करते हुए आखिरकार दुनिया के सामने मुंह खोल ही दिया। तब जाकर हमारी दुनिया को पहली बार जेफरी एप्स्टीन के तमाम काले कारनामों और उसके इस खतरनाक आइलैंड के बारे में पता चला। पूरी दुनिया को लगा था कि अब तो जेफरी एप्स्टीन का भांडा फूट चुका है, उसके खिलाफ तमाम सबूत भी हैं, तो इसीलिए अब वो कभी भी अपनी जिंदगी में जेल से बाहर कदम रख ही नहीं सकेगा। लेकिन तमाम लोग गलत सोच रहे थे, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के ऊपर दुनिया के हद से ज्यादा ताकतवर और असरदार लोगों का हाथ था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 महीने के बाद ही जेफरी एप्स्टीन एक बार फिर से जेल से बाहर आ चुका था और पहले की तरह ही खुलेआम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। ठीक 6 साल के बाद मतलब 2011 में एक बार फिर से कई लड़कियों ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ मुहिम शुरू की और इसके खिलाफ लगातार बोलना शुरू किया। लेकिन इस चीज का भी जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल पहले की तरह ही आजादी के साथ घूमता रहा। 2018 में फिर मीडिया ने भी एप्स्टीन फाइल के ऊपर बड़ी बड़ी रिपोर्ट छापनी शुरू की, जिसकी वजह से अब अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार 2019 में इस इंसान को गिरफ्तार कर ही लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर सुनवाई होती और तमाम हकीकतों से पर्दे उठते कि कौन कौन इसमें शामिल है, क्या क्या होता था। उससे पहले ही अचानक से एक दिन जेफरी एप्स्टीन ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली। जेफरी एप्स्टीन की ये जो खुदकुशी थी ये भी अपने आप में आज तक एक बड़ा राज है, क्योंकि जिस जेल के अंदर उसने खुदकुशी की थी वो सबसे महफूज जेल समझी जाती है और जिस वक्त उसने खुदकुशी की थी उस वक्त न जाने क्यों सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे और तो और वहाँ पर ड्यूटी के लिए जो गार्ड्स मौजूद थे वो भी उस वक्त सो गए थे। ये सारी ही चीजें सवालिया निशान खड़े कर रही थी। इसीलिए अगले ही दिन से अमेरिका की सड़कों पर चलने वाले लोग क्लियरली ये कह रहे थे कि ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि ये मर्डर है। जानबूझकर जेफरी एप्स्टीन की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया है ताकि जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के राज हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। एप्स्टीन तो मर चुका था, मगर उसके बाद अब सब लोगों की नजर उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड पर थी जिसका नाम था ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, ये वही लेडी थी कि जो इस पूरे काले कारनामे में एप्स्टीन की सबसे बड़ी साथी थी। एप्स्टीन के लिए अलग अलग इलाकों से लड़कियों को ढूंढना, उनको फंसाना और फिर उनको इस काम के लिए ट्रेन करना, ये सारी जिम्मेदारियां यही निभाती थी। सबसे पहले 2020 में इस लेडी को गिरफ्तार किया गया। पूरी कार्रवाई चली, अलग अलग लड़कियों के बयान दर्ज किए गए और फिर 2022 आते आते इस लेडी को पूरे 20 साल की सजा सुनाई गई। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो गई, बल्कि इसके बाद अमेरिका में फिर लगातार ये मांगे उठने लगी कि जितने भी लोग एप्स्टीन से जुड़े हुए थे, उसके क्लोज थे, उसके फ्रेंड थे, तमाम लोगों का खुलासा किया जाए। मतलब इस पूरे केस से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको पब्लिक किया जाए और पूरी दुनिया जाने कि आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है। लंबे वक्त तक तो इस पूरे मामले को लेकर टालमटोल होता रहा, लेकिन आखिरकार नवंबर 2025 में एक कानून पास किया गया और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे मामले की जो सच्चाई थी, इस पूरे केस की जो हकीकत थी, वो दुनिया के सामने आना शुरू हो गई। साथियों, आप लोगों को अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तो जरूर याद होंगे। उनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने एप्स्टीन के इस आइलैंड को लगभग 25 बार विजिट किया था। ट्रम्प के बारे में भी दावा किया जाता है कि वो 90 के दशक में जेफरी एप्स्टीन के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और उनके पड़ोसी हुआ करते थे। मगर जैसा कि खुद ट्रम्प लगातार ये कहते आए हैं कि उनकी ये दोस्ती उसी वक्त टूट गई थी और फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। उसके बाद ट्रम्प के मुताबिक उन्होंने इस इंसान से कभी कोई ताल्लुक नहीं रखा है। लेकिन अब अगर बात की जाए इस केस से जुड़े हुए उन डॉक्यूमेंट्स की कि जो हाल ही के दिनों में अमेरिका की तरफ से बारी बारी से रिलीज किए जा रहे हैं, तो इनके रिलीज होने के बाद दुनिया के जो चंद मशहूर लोग सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आए हैं, उनमें से एक नाम है माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स का। जी हाँ, वही कि जो आजकल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका की तरफ से इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की पहली खेप रिलीज की गई थी, तब ही बिल गेट्स के बहुत सारे ऐसे फोटोज वायरल होना शुरू हो गए थे कि जिनमें उनको लड़कियों के साथ देखा जा सकता था। और अब जब दोबारा से अमेरिका की तरफ से एप्स्टीन केस से रिलेटेड और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं, तो यहाँ पर भी न सिर्फ कई बार बिल गेट्स का नाम मौजूद है, बल्कि उनके नाम के साथ बहुत सारा मटेरियल भी मौजूद है। खास तौर से इस बार एक ईमेल काफी चर्चाओं में है कि जिसमें एप्स्टीन की तरफ से लिखा गया था कि बिल गेट्स ने रशियन लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए थे, जिसकी वजह से फिर बिल गेट्स को एसटीडी मतलब जो कि एक बीमारी है वो भी हो गई थी। ईमेल के मुताबिक बिल गेट्स की तरफ से न सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो एप्स्टीन को भेजी गई थी, बल्कि एप्स्टीन से इस पूरे मामले को छिपाने की भी गुजारिश की गई थी। और अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इन्वेस्टिगेशन वाली फाइलों की, जिसमें पीड़ित लड़कियों की तरफ से ट्रम्प के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। में अगला नाम एलोन मस्क का नजर आता है। जी हाँ, वही एलोन मस्क के जो अभी कुछ वक्त पहले तक एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की डिमांड करने वाले लोगों में सोशल मीडिया के ऊपर सबसे आगे थे। नए रिलीज होने वाले डॉक्यूमेंट्स ये दावा करते हैं कि 2012 से 2014 के बीच एलोन मस्क और एप्स्टीन के बीच कई बार बातचीत हुई थी। एलोन मस्क की तरफ से एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने की इच्छा भी जताई गई थी। इवन एलोन मस्क की तरफ से पार्टी की डेट भी पूछी गई थी।
دوستو اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔